So, Assalamu alaikum warahmatullah. Again, Adil sir with the very topic English grammar. Okay. So, if you still remember, last time, I'm weaker at using these blackboard chalks and all that. Still, I do try my best to make it as nicer as I can. So last thing in the previous video which I taught you, let me recap that. Okay, let's have a recapitulation of the very previous topic first. I said there are 5 classes of verbs and I mentioned each one. The last one which I started teaching was the main verb, and I discussed the 4 forms of a main verb. I said first form, root form, present form of verb. Then I said second form is the past form of verb. I said third form of verb is the past participle. As I said, it's used as an adjective as well. And the fourth one, as I said, is the noun in use also. I call that gerund, and that's a verbal noun as well, because used both a noun as well as a verb, so it becomes a verbal noun. Present participle as well, we call it. So let's go ahead. Before I gonna start, at the very basic information as well, weak verb, strong verb, a regular verb and irregular verb, I said that as well. And now I will be starting from sentence, because these things are very much used in tenses, and for that we must know what a sentence is, what are the main parts of a sentence, and what are the sub parts of a sentence. So first I will be teaching. You may be a bit confused. In the last lecture I gave basic information, and then I said classes of verbs and all that, and now sir has started teaching something different. Since we are to deal tenses, it is, as I do always say, essentially important to make the foundation stronger. Once it is stronger, all the things will be easier to go to deal with. And now see, as I said, we will be starting with sentence. If it is visible, you can, as I do say always, pen down the things also. Sentence. What do we commonly say? हम आम भाषा में, आम जुबान में, आम शब्दों में हम क्या बोलते हैं? Sentence is a group of words in a proper arrangement or order, proper order में हो, and which carries a sentence, or these group of words which carry proper meaning. Now that's just pulling longer the topic and all that, the discussion. इतना ज़्यादा नहीं खींचेंगे हम इसको, शॉर्ट में बता दूंगा मैं. It begins with a capital letter. Sentence. See, it begins with a capital letter. And ends with a full stop. Okay, do you say full task? हाँ, full stop. तो full stop कैसा होता है? अगर आपने देखा होगा कभी लाइफ में, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ये full stop है. तो सेंटेंस की डेफिनेशन, व्हाट इज ए सेंटेंस? आसान शब्दों में, इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप से. कभी कभार कहेंगे सेंटेंस के बीच में कहीं कैपिटल लेटर होगा, दैट इज ग्रामर यूजेज का डिफरेंट केस होता है, वो कि ये एब्रिविएशन है या पर्टिकुलर नाउन है तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वगैरह वगैरह. ठीक है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन होता है, दैट्स वेरी मच नोन टू ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नाउ. ठीक है, नाउ सी, सेंटेंस का मतलब ही है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें मीनिंग है. तो अब ये लिखना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मीनिंग, कभी कभार एक शब्द का भी सेंटेंस होता है. एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, इन द वेरी बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रामर, आई सेड कि ईट, गो, डू, इसको हम वन वर्ड इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. एक ही लफ्ज का है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, वहां पर हिडन है,
तो एक ही लफ्ज का भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे एक ही लेटर का वर्ड बनता है तो वर्ड को भी हम, ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे आई, मैं, पूरा वर्ड है ये, मीनिंग है इसकी, तो ये एक ही लेटर है, ठीक है। लिहाजा जो सही होगा वही बताएंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए सेंटेंस की मैं एग्जांपल दे दूंगा यहां पर। अब ये बाहर बिल्कुल भी मत कहिएगा कि सर कुछ नया पढ़ा रहा है। ट्रस्ट मी, वी हैव बीन ग्रोइंग लेथार्जिक, वी डोंट गो फॉर द वेरी रिसर्च जिसे आप कहते हैं, हम वो सब करते ही नहीं है। वी डोंट ऑब्जर्व द थिंग्स केयरफुली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये अलग सी डेफिनेशन बता दी, ठीक है। तो देखिए, आई ईट फूड, आसान सा सेंटेंस में दूंगा ताकि आगे जाकर जब हम सीखेंगे वो आसान हो जाएगा, बड़ी चीजें सीखनी भी। तो सी, आई ईट फूड कितनी बार खाते हो? ट्वाइस ए डे। अब देखिए, कुछ लोग 3-4 बार भी खाते होंगे ना, तो कुछ लोग मेरी तरह है जिनको बड़ी मुश्किल से एक समय का खाना मिलता है, काम ज्यादा है, तो आई हार्डली गेट टाइम, विच इज वेरी आई शुड से आई एम नॉट हेल्थ कॉन्शियस। देखिए सेंटेंस के जो 2 मेन पार्ट्स है, ये सेंटेंस है, आई तो हमेशा कैपिटल रहता ही है, नो डाउट। अब देखिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप या आपकी फुल टास से एंड हुआ, ठीक है। तो इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर and it ends with a full stop. Now somebody asking, sir, this is question, is this a sentence? Yeah. What is your name? This is a sentence. What is your name? ठीक है, ये ऐसे note of interrogation as well as full stop is there. Yeah. तो ये कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नोट ऑफ इंटरोगेशन के नीचे, इस नोट ऑफ इंटरोगेशन जो मार्क है इसके नीचे फुल स्टॉप है। इस तरह से जब हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसके नीचे भी ये होता है, मींस इट इज फुल स्टॉप। अगर ये है कॉमा जिसको हम कहते हैं, तो सॉरी ये है पंक्चुएशन मार्क्स में, या ये है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है, ये पूरा सेंटेंस नहीं होता। अगर पंक्चुएशन हमने डिस्कस करी तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल, विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्लियरली। नाउ सी, सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ए सेंटेंस हैज 2 मेन पार्ट्स। ए सेंटेंस हैज 2 मेन मेन पार्ट्स। सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, 2 मेन हिस्से होते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज सम सब पार्ट्स एंड हैज सम सब पार्ट्स, SUBPARTS, सब पार्ट्स। ओके, सो what are the 2 main parts? Very much known to you and must be you are grown up, you are the students of 11th and 12th. Okay, the first one is subject, यहाँ देखिए चार्ट में मैं लिखूंगा, and the second one is predicate. Okay, subject, predicate, ठीक है। मैं बता दूंगा, अंडरलाइन भी करूंगा, फिर से एग्जाम्पल दूंगा wherever it is necessary. ओके, सब्जेक्ट को जब हम देखेंगे क्या कहते हैं हम आम जुबान में, या उर्दू में क्या हम कहते हैं? उर्दू में हम इसको कहते हैं फाइल, यही कहते हैं ना। जैसे वर्ब, ये असल में मैंने उस दिन भी कहा था फाइल इज एन अरबिक वर्ड बेसिकली, तो अगेन ये अरबिक है फाइल। तो इसी तरह से अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे, या उर्दू में काम करने वाला, या अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे डूअर ऑफ एन एक्शन। डू मीन्स करो, डूअर मीन्स करने वाला। हाँ, जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम ऐड करेंगे ER, AR, OR, इट बिकम्स वन हु डज या वन विच डज, ठीक है ना, एनीबडी हु डज। तो यहां पर आई जो है
आई सब्जेक्ट है, ईट फूड ट्वाइस अ डे इज प्रेडिकेट। समझ आया कुछ? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया काम करने वाला, लेकिन मैं हमेशा काम करने वाला ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी कभार सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है। कैसा? जैसे मैं यहां पे बता दूंगा, शी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल। ये सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप तो बनता है, फिर एस तो कैपिटल बनता है, फिर ठीक है। आप जरूरी नहीं है, अगर कभी कभार सुमाल लगेगा, क्योंकि ये चाक बोर्ड पर हम लिखते हैं तो उसको इग्नोर करिएगा, इग्नोर करो। हाँ, शी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज सब्जेक्ट, नो डाउट, ये सब्जेक्ट है। जैसे आई यहां पर सब्जेक्ट है, एस में लिखूंगा, एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। शी इज सब्जेक्ट, रिमेंबर दिस थिंग। बट क्या ये यहां पर कुछ काम करती है ये लड़की? डज शी डू एनीथिंग? नो, वी हैव प्रेज्ड हर। ये शी कौन है वो अलग क्वेश्चन है। शी सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है। और याद रखेंगे आप, शी या आई, ये जो सब्जेक्ट्स यहां पर हैं इन दो सेंटेंसेस में, ये सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। रिमेंबर दिस थिंग, सब्जेक्ट इज ऑलवेज ईदर नाउन और प्रोनाउन। ओके, एज वी नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, why do we use pronouns and all that, classes, kinds of pronouns and all that. Now see, ये जो I और she है ये भी तो pronouns है, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए, ये हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में होंगे, हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में होंगे सब्जेक्ट्स, नाउन या प्रोनाउन होंगे। वो अलग मसला है फिर, दे कैन बी सिंगुलर, दे कैन बी प्लूरल एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सिंगुलर पिंगुलर हो सकते हैं ना, हाँ, ये याद रखेंगे आप। ये सब्जेक्ट जो है फिर से हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, फिर सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, एक या एक से ज्यादा। जैसे मैं कहूंगा रहीम एंड करीम आर फ्रेंड्स, रहीम एंड करीम आर फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं बोलूंगा दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त लोग हैं। दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स, माई मॉम डैड, ठीक है ना। ये प्लूरल भी हो सकते हैं, नाउन भी प्रोनाउन भी। अब यहां पर हमने प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर मैं नाउन यहां पर डालूंगा तो मैं क्या बता दूंगा, औरा, औरा इज ए गुड गर्ल। गुड, मेरी यादाश्त बड़ी तेज है, मैं बोलता नहीं है। So she is someone last time had called about a form and all that. Now see, noun है, यहाँ पर pronoun है। अब जो important बात मुझे बतानी थी, जो मैंने बतानी चाही थी अभी, वो ये है, ये सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता है, काम करने वाला नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आई तो कुछ कर रहा है ना, आई तो कुछ कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट कहां है? जो सामने होता है, जिससे हमने क्वेश्चन पोज किया, टू हु वी आस्क्ड द क्वेश्चन, या वी आस्क्ड द क्वेश्चन, जिससे हमने क्वेश्चन पूछा या पूछते हैं, इज द सब्जेक्ट अगेन। ओके, नाउ सी, ये सेंटेंस की बात है, ये मैं फिलहाल यहां पर बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट इसीलिए हम कहते हैं, अगर ये हमेशा काम करने वाला नहीं है, यहां पर ये कुछ खाता है ना दिन में, वो भी 2 बार, लेकिन वहां पर हमने इसकी तारीफें की, शी की या औरा की। हमने कहा खूबसूरत लड़की है, हमने कहा अच्छी लड़की है, ठीक है। हाँ, जैसे आप कहेंगे आदिल सर टीचेस इंग्लिश ग्रामर, तो आदिल सर यहाँ पे काम करता है ना, क्या काम करता है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ा, कब पढ़ाता है? दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, विल बी टॉट इन द यूजेज में हम वो सब पढ़ाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आदिल सर इज फ्रॉम कुलगाम, आदिल सर कुलगाम से है। आदिल सर यहाँ पे कोई काम करता है इस सेंटेंस में? नहीं, बल्कि क्या हमने इसके बारे में कहा, कुलगाम से हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर ये जरूरी समझता हूं कि हम सब्जेक्ट की और एक डेफिनेशन लिखेंगे, क्या? अबाउट विच या अबाउट हु समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड, जिसके बारे में
कुछ कहा जाता हो, हाँ, जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो वही सब्जेक्ट होता है। यहां पर हमने आई के बारे में क्या कहा कि वो खाना 2 बार दिन में खाता है। यहां पर हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा कि वो खूबसूरत है। यहां पर हमने औरा के बारे में क्या कहा कि वो अच्छी लड़की है, अच्छी बच्ची है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर और एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहूंगा रहीम, रहीम एंड करीम, करीम आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। ये जो रहीम करीम है ना, ये अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट जो है ना प्लूरल है ना, प्लूरल है, 2 है यहां पर और नाउन ही है। अब अगर मैं प्रोनाउन डालूंगा दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। हाँ, तो ये यहां तक समझ आया। सब्जेक्ट इज अबाउट या अबाउट विच या अबाउट हु समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो इनके बारे में हमने क्या कहा कि वो अच्छे दोस्त हैं। इसके बारे में हमने क्या कहा, एक अच्छी लड़की है औरा। तो शी के बारे में हमने क्या कहा, खूबसूरत लड़की है। नाउ सी द रिमेनिंग पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, व्हाटसोएवर is said about subject is called predicate। जो भी कुछ हमने सब्जेक्ट के बारे में कहा वही प्रेडिकेट होता है। यहां पर हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा कि खाना खाता है दिन में 2 बार। यहां पर हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा, खूबसूरत लड़की है। यहां पर हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा, अच्छी लड़की है। यहां पर सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या कहा, अच्छे 2 दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ कहते हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम बात करेंगे सब पार्ट्स की। जैसे मैंने कहा ए सेंटेंस हैज 2 मेन पार्ट्स, MAIN है यहां पर, ये 2 मेन पार्ट्स and has some sub-parts, and has also some sub-parts, SUB है यहां पर, ये sub-parts, sub-parts, ओके। तो 2 मेन पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। सब-पार्ट्स क्या है, which we always get from predicate। वो सब-पार्ट्स हमें प्रेडिकेट से ही मिलता है। क्या क्या मिलता है, verb मिलता है which we already discussed, ओके। सब-पार्ट्स वही इसी में से निकलता है, या फिर वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, हाँ, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एटसेट्रा। तो ये वर्ब है जो हमने डिस्कस किया। मेन वर्ब की जब हम बात करेंगे, ऑक्सिलरीज अलग से पढ़ाऊंगा मैं जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आई जंप फ्रॉम दिस टू दैट थिंग। और इस वर्ब के बाद जो और एक है वो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो इन 2 चीजों को डिस्कस करना जरूरी है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट डिस्कस्ड, प्रेडिकेट डिस्कस्ड, सब पार्ट्स जो प्रेडिकेट से हमें निकलते हैं, वर्ब ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। देन वी हैव ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है एनीथिंग, कोई चीज। दिस ऑब्जेक्ट, रिमूव दिस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कैप एक ऑब्जेक्ट, ये घड़ी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को अलग से पढ़ेंगे ना, जब हम इस ऑब्जेक्ट को अलग से पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हमने वर्ब को हमने फ़ाइल कहा था, काम, ठीक है। सब्जेक्ट को फ़ाइल कहा था, ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल कहते हैं हम, मफ़ऊल। हाँ, चलिए, कम से कम मुझे इतनी उर्दू तो आती है ना, हाँ, अच्छी बात है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, भागते चोर की लंगोटी ही सही। मेरे ख्याल से मेरी उर्दू भी अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम ऑब्जेक्ट को, सॉरी क्या कहेंगे,
on which work takes place या वर्क इज डन, ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम वाक़या हो, जिस पे काम हो रहा हो, जिस पे काम किया जाता हो, जिस पे काम किया जा रहा हो, जिस पे काम किया जा चुका हो। आई क्या कर रहा है? खा रहा है, तो वर्ब है। क्या खा रहा है? फूड। तो इस पे काम चल रहा है ना, फूड पे काम चल रहा है, तो ये फूड जो है दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये हर एक चीज सेंटेंस में हो, लेकिन सेंटेंस में कम से कम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है। एज ए सेड, प्रेडिकेट में प्रीपोजिशन होगा, प्रेडिकेट में वर्ब होगा, प्रेडिकेट में कंजंक्शन होगा, प्रेडिकेट में किसी और चीज का नाम होगा, नाउन प्रोनाउन, प्रेडिकेट में एडवर्ब होगा, प्रेडिकेट में कंजंक्शन होगा, प्रेडिकेट में इंटरजेक्शन होगा। फिर ठीक है, तो मोस्टली हम इंटरजेक्शन को अलग से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आलस, ब्रावो, ठीक है, ब्रवाजो, वाओ, हुर्रा, हाउ स्वीट, समथिंग लाइक दैट। तो सी ऑन विच वर्क टेक्स प्लेस, आई ईट फूड, यहां तक मैं लूंगा। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही है हमारे अंग्रेजी में, हम क्या कहते हैं? SVO। ये इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। फिर अलग बात है प्रोनाउन है, ये अलग बात है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो SVO हो गया ऑब्जेक्ट। मैं खाता हूं, यहां अगर मैं यहां पे कहूंगा ही, ठीक है, ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। तो ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है। वो खाता है कुछ, क्या खाता है? फूड। तो काम किस पे चलता है? ऑब्जेक्ट पे। तो इस फूड पे, यही ऑब्जेक्ट है। अब मैं ऐसे लिटरली बता दूंगा, ऑब्जेक्ट की और एक क्वालिटी होती है कि इट रिड्यूसेस और इंक्रीजेस इन क्वांटिटी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी क्वांटिटी या तो कम हो जाएगी या इसकी क्वालिटी में फर्क आएगी, या इसकी क्वालिटी में फर्क आएगा, क्वालिटी में फर्क आएगा। अब देखिए, फूड प्लेट में है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जब आप इस पे काम शुरू करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसकी क्वालिटी कम, क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, या फिर क्वालिटी कम अलग चेंज हो जाती है। जैसे कि आई पेंट वॉल्स, आई सब्जेक्ट है, पेंट वर्ब है, वॉल्स ऑब्जेक्ट है ना, वॉल्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या? इनका कलर कुछ और था, अब कुछ और लग गया, तो ये वॉल्स पे जो काम चल रहा है ये ऑब्जेक्ट है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो इंशाल्लाह गॉड विलिंग हम पढ़ाएंगे आपको। कहां पे? हाँ, टेंसेस में। तो आई होप, आई बिलीव दैट यू एंजॉयड दिस मच, यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हमारा जो इसका और एक पार्ट है जिसको मैंने कॉम्प्लीमेंट कहा। ठीक है, अब मैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही लिटरली बोल देता हूं क्योंकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है इसको लिखना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स एनीथिंग विच इज एडिशनल टू ए सेंटेंस। कोई भी चीज, एनी वर्ड और वर्ड्स, कोई एक लफ्ज या बहुत सारे लफ्ज जो हम और ऐड करते हैं सेंटेंस को आफ्टर ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट। देखिए, आई ईट फूड मैंने यहां पर कहा, आई ईट फूड, फूड तक आपको समझ आए, ऑब्जेक्ट है। ट्वाइस ए डे, दिन में कितनी बार? 2 बार, ये कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट एक सेंटेंस की मीनिंग बढ़ाता है, या सेंटेंस को कंप्लीट करता है, या सेंटेंस की मीनिंग को खूबसूरत करता है। इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, इट एड्स मोर टू द सेंटेंस, इट मेक्स सेंटेंस ब्यूटीफुल, या इट ब्यूटिफाइज द सेंटेंस। ओके, अब देखिए, मैं खाना खाता हूं, लेकिन कब खाता हूं? ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। आई टेक अ कप ऑफ कॉफी, मैं 1 कप कॉफी लेता हूं। कब? एट बेड टाइम, इन द मॉर्निंग।
या जो भी टाइम आपका होगा तो वो सारा कॉम्प्लीमेंट होता है, उससे मीनिंग बढ़ती है, खूबसूरत सेंटेंस होता है या सेंटेंस को कंप्लीट भी करता है। एंड वन मोर थिंग, दिस कॉम्प्लीमेंट इज आंसर टू सम क्वेश्चंस। किस क्वेश्चन का आंसर होता है ये? विच, वाई, व्हेन, वायर, हु, हुज एटसेट्रा। ठीक है, इन्हीं जैसे क्वेश्चंस का ये आंसर होता है। जैसे मैं बता दूंगा, या व्हाट, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, व्हेन, ट्वाइस अ डे। आई ईट फूड, व्हाई, टू कीप माई सेल्फ हेल्दी। हाँ, अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए, सेहत का ख्याल जरूरी है ना। तो यहां पर ये सारा आपको कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम टेंसेस पे। टेंसेस पे अब देखिए, SVO टेंसेस में किस काम आता है। आई बिलीव कि आपको बड़ा आसान लगेगा उन बच्चों को भी जिन्हें ABCD भी नहीं पता। द स्टूडेंट्स, द डिसाइपल्स हु डोंट नो इवन ABCD अबाउट ग्रामर, ABCD अबाउट लैंग्वेज। आई बिलीव once Adil sir is there, they will be understanding if they pay attention really, if they have curiosity, anxiety, if they are anxious about learning। या इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, आप टेंसेस उठाएंगे। जैसे मैंने कहा था ना, देयर आर 3 मेन यूनिट्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स एंड टेंसेस। या पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स एंड टेंसेस, these are all in your syllabus there, but not every part of parts of speech। अब देखिए, ये tenses है, तो how many tenses are there? 3 tenses, जैसे हमें पता है। क्या क्या है? yes, past, present, future। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, दीज आर 3 टेंसेज इन इंग्लिश एंड इन एवरी लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम अरबिक की बात करेंगे तो वहां पर भी है। ठीक है, अगर हम उर्दू की बात करेंगे तो वहां पर भी है। पास्ट को हम कहते हैं माजी, गुजरा हुआ जमाना, अतीत, अतीत कहेंगे ना। हाँ, प्रेजेंट, मौजूदा जमाना। ठीक है, विच इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है। फ्यूचर, मुस्तकबल, मुस्तकबल कहेंगे, आने वाला दौर, आने वाला जमाना। तो दीज आर 3 टेंसेज इन एवरी लैंग्वेज। एंड सी, दीज 3 टेंसेज आर सब डिवाइडेड इन सेम 4 पार्ट्स। दीज आर डिवाइडेड इन सेम 4 पार्ट्स, यानी ईच वन हैज 4 पार्ट्स एंड ऑल द 4 पार्ट्स आर सिमिलर टू ईच वन। वो 4 पार्ट्स जो है हर एक के सिमिलर है, हर एक के सिमिलर है। जैसे पास्ट का मैं करूंगा तो पास्ट सिंपल है, या जिसका आप इंडेफिनिट भी बोलते हैं। पढ़ाते पढ़ाते आगे पता चलेगा सिंपल या इंडेफिनिट क्यों कहते हैं हम। इस तरह से पास्ट का दूसरा देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस है, या जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। इसी तरह से तीसरा पार्ट देखेंगे तो परफेक्ट है, या जिसको हम कंप्लीटेड भी कहते हैं। और चौथा पार्ट जो है, लिसन, फर्स्ट वन इज सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड वन पास्ट परफेक्ट, थर्ड वन। द फोर्थ वन इज मेड फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड। Fourth one is made a combination of third and second, third and second, second and third नहीं, third and second। third क्या है? perfect। second क्या है? continuous। ठीक है, पहले पहले मैं जब ग्रामर पढ़ाता था ना, लॉकडाउन स्ट्राइक से पहले, तो पैसे मिलते थे। अब तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो मजे ही मजे उनके हैं, स्टूडेंट्स के तो मजे ही मजे, उनकी जीत हुई ना। स्टूडेंट्स हैव
everything free now and that to a click away. Everything is a click away. www.drgoogle.com is there. सब निकलेगा YouTube वगैरह गूगल से. तो फ्री में आपके सिर्फ इंटरनेट पैक चाहिए. So get benefited, हाँ, from all these free things. Free things. ये मत सोचें कि आप स्कूल फी भरते हैं वगैरह, कुछ पेनीज, ये बहुत कुछ होता है. अब देखिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या कंप्लीटेड प्रोग्रेसिव भी आप कह सकते हैं इसको. क्या, क्यों है ये नाम, कैसे पढ़े हैं, वाई आर दे गिवन सच नेम्स? इट विल बी एवरीथिंग डिस्कस्ड bit by bit, what we say, you know, even iotas will be discussed. Now see, 4 parts, and these 4 parts belong to each one, be it past, be it present, be it future, चाहे past हो, present हो, future tense हो, हर एक के 4 parts है और यही 4 parts है, change तो नहीं है. ठीक है, जैसे मैं कहूँगा past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. इस तरह से मैं कहूंगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यस, अब देखिए हर एक के 4 पार्ट्स हैं. जब हम सिंपल को उठाएंगे इसका सेंटेंस बनेगा, इसके भी फिर 4 सेंटेंसेस बनेंगे, इसके भी, और वो सिमिलर है. ठीक है. नाउ सी, टेंस क्यों कहते हैं हम इसको? टेंस क्या है? लैटिन वर्ड अगेन टेम्पस से निकला है, टेम्पस से. ठीक है. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन सिंपली एनीथिंग विच शोज टाइम. इट शोज टाइम. इट शोज टाइम. टेंस शोज टाइम. टाइम ऑफ व्हाट? ऑफ एनी एक्शन, किसी काम का. ऑफ एनी एक्शन, किसी काम का वक्त बताता है, जमाना, कब हो रहा है, कब हो रहा था, कब किया जा रहा था, कब हो जाएगा. इसीलिए किया था नहीं, कर रहा हूं नहीं, करूंगा, करता हूंगा उस वक्त जब आप पहुंचेंगे. तो कब, when. So it is always the answer of when. Answer of tenses जो है ना, आंसर ऑफ किसका है? when. कब. सो when जब हम बात करेंगे ना, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. तो टाइम हमें पता चलता है टेंसेस से, इसीलिए हमें 3 टेंसेस है, 3 जमाने हैं. 3 times are there, या past, present, future, and they are again further divided, categorized into 4 parts, which I earlier mentioned and discussed. Okay, so I think this much have been understood by you, I believe so. So I think this is enough in this lecture. I will be starting in the very second, third lecture of our series from the very second part, present tense and simple, with everything which is important and required, the requisite skill there. Wish you all the best. Good luck. Hope you understood and enjoyed the class.